Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and you are also preparing pretty well for your upcoming examination like CSIR and also for other examination including DBT as well. Now from this video, we're going to compile some important questions that are totally important for CSIR examination. I have previously also made the playlist comprising different important questions from different unit of CSIR examination syllabus. So I will also provide the link of that playlist in this video. And from today onwards, I will provide you some new questions that can be asked in this attempt. So if you like my efforts, you can hit the like button and do subscribe my channel for more such videos. So this is the first question of today's video. So in this question, in developmental biology, what is meant by the term growth? यानी आपको कुछ sentences दिए हैं growth से related. First of all, in this type of question, your attempt should be you have to read all the options first. अगर आपने first option पढ़ा, like the first option is growth occurs through increase in cell size. यानी अगर cell size बहुत छोटा है, उसके बाद वो grow कर रहा है size में, it means this you can term as growth. This is absolutely correct. But अगर आप सिर्फ यही option देख के and if you will pick the option A only as the correct option, then you are doing the mistake. In such type of question where it is asked that which of the following option is correct, or like in this question it is asked that what is meant by the concept of growth. So you have to firstly read all the statement, then only you can pick out the answer. So first option तो correct है, यानी growth साइज में जब सेल बढ़ता है तो उसे हम ग्रोथ कहते हैं. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज ग्रोथ अकर्स थ्रू इंक्रीज इन सेल नंबर. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. यानी जब एक सेल से 2 सेल बनेंगे एंड जब 2 सेल से 4 सेल बनेंगे, इसे भी हम ग्रोथ ही कहते हैं. जब 1 से 2 सेल बनता है, 2 से 4 सेल बनता है एंड 4 से 8 लाइकवाइज. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. यानी कि ऑप्शन ए जो है वो भी करेक्ट है, ऑप्शन बी भी करेक्ट है. नाउ लेट्स रीड द ऑप्शन सी. Growth can result from increase in the volume of extracellular matrix between cell. This is also correct. जब भी सेल का साइज बढ़ेगा तो उसका extracellular matrix भी increase होगा. So this can also be termed as growth. Now this is also correct. Now the option D is cell death is an important determinant of overall growth. This is also absolutely correct. Why this is correct? Because after dividing at a certain point of time, every cell capacity will be exhausted. So after a certain period of divisions, it will die. यानी हर सेल साइकिल कंप्लीट होने के बाद में सेल क्या होगा? सेल डेथ होगा आफ्टर एग्जॉस्टिंग इट्स द परमिसिबल लिमिट ऑफ डिविजन. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ओवरऑल ग्रोथ. सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट. नाउ अगर ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी और डी 4 ऑप्शंस आर करेक्ट. सो ऑप्शन ई क्या है? All of the above are mechanism by which growth occurs. तो आपका in short क्या बोलना चाहिए? All of the above are correct. So your correct answer for this question will be option E, because all the statement like A, B, C, D are correct. They all are termed as growth. Now the next question of today's video. Many cells in the body divide only rarely. Firstly, you have to focus on the keyword. In this question, it is asked that many cells in the body divide only rarely. It is asked that कि rarely divide हो रहा है. If at all, neurons, red blood cells and keratinocytes are extreme examples in which the division is rare. So in which portion of the cell cycle would such cells be considered to be? यानी कुछ cells जिसमें division बहुत rarely देखने को मिलता है. For example, in which cells like RBCs, neurons, keratinocytes, these cells rarely divide. So यहाँ पे क्या पूछा गया? In which portion of the cell cycle would such cells be यानी कौन से सेल साइकिल के फेज में वो चले जाते हैं कि वो डिविजन नहीं कर पाते हैं. इज इट एम फेज? नो, एम फेज तो नहीं होता है क्योंकि माइटोटिक फेज में तो डिविजन होता ही है. G1 फेज? नो. G0 फेज? येस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. S फेज भी नहीं, G2 फेज भी नहीं. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज G0 फेज. अब G0 फेज क्या होता है इसका थोड़ा डिटेल देखते हैं. टिपिकली कोई भी सेल G0 फेज में कब जाता है? जब उसको कोई फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती है डिवाइड होने के लिए, और एल्स इट इज़ कंप्लीटेड इट्स डिवीजन ऑलरेडी. यानी या तो वो सेल पूरी तरह से मैच्योर हो चुका है कि उसे सेल डिवीजन की नीड नहीं है, या फिर उसे कोई भी
फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल रही है कि वो सेल साइकिल में जाए एंड डिवीजन अपना स्टार्ट करे। और ये किस कंडीशन में होता है? जब सेल क्या हो, अपना न्यूट्रिएंट डिप्राइव कंडीशन में हो या फिर किसी टाइप के स्ट्रेस में हो, तो वो अपना जो डिवीजन है, अपना जो ग्रोथ है वो स्टॉप कर देता है। सो वो किस में एंटर हो जाता है? वो एंटर हो जाता है G0 फेज में, क्विसेंट स्टेज में, और उस फेज में डिवीजन क्या होता है? स्टॉप हो जाता है। यानी कि किस कंडीशन में होगा? इफ़ अ सेल इज इन स्ट्रेस कंडीशन और दिस सेल इज कम्प्लीटली डिवाइडेड, मैच्योर हो चुका है, फुली डिफ्रेंशिएटेड है, लाइक हेपेटोसाइट्स और द न्यूरॉन्स और द RBC अभी हमने देखा। सो तब जाके सेल किस में चला जाता है? वो एक डोरमेंट स्टेट में चला जाता है एंड डिवीजन अपना नहीं करता है। सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या था? G0 फेज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इन बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ वायरसेस? यानी किसी भी बैक्टीरिया में कोई भी वायरस ग्रो नहीं कर पाता है, उसका रीज़न क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, टोपोआइसोमरेज, गायरेज, प्रोटीएज। यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन बाय ऑड वन आउट मेथड। यानी ये जो टोपोआइसोमरेज है, गायरेज है, प्रोटीएज है, ये सारे जो एंजाइम्स हैं, टोपोआइसोमरेज, गायरेज, प्रोटीएज, इनसे ये क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अलग है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जिसे हम मॉलिक्यूलर सिजर भी कहते हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग द DNA स्ट्रैंड एट अ स्पेसिफिक साइट। तो जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो ऐसी ऑड वन आउट हो गया बाकी तीनों से। नाउ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, और एल्स the defense mechanism of bacteria to prevent the viral attack is because they have restriction endonuclease. उनके पास variety of restriction enzymes होते हैं, they cut the viral DNA, therefore उनकी entry वो वहाँ पे रोक देते हैं and वो viral attack रोकते हैं, virus का growth therefore रुक जाता है। So the correct answer for this question is restriction endonuclease. Now next question, the first recombinant DNA molecule was synthesized in the year. Like this is a very basic question, you only have to remember the year, but many a times जो year है वो हमारे mind से skip हो जाता है, so you have to just remember it. The first recombinant DNA molecule was synthesized particularly in 1972. So the first recombinant DNA was synthesized in the year 1972 by Paul Berg and his co-workers like Stanley Cohen and Herbert Boyer along with Annie Chang. So आपको याद रखना है कि 1972 में ही recombinant DNA जो है वो synthesize हुआ था। Now next question again from developmental biology. What molecular marker of head identity is found in the apical tip of a hydra during head regeneration? यानी कौन सा molecular marker जो कि हेड को स्पेसिफाई करता है, जो हमें एपिकल टिप में देखने को मिलता है हाइड्रा। यानी कौन सा मॉलिक्यूलर मार्कर जो है वो हेड आइडेंटिटी के जैसा प्रेजेंट होता है ऑन द एपिकल टिप ऑफ अ हाइड्रा। यानी जब भी हाइड्रा का हेड रीजनरेशन होता है तो कौन सा मॉलिक्यूलर मार्कर वहाँ पे हेड आइडेंटिटी के जैसा प्रेजेंट होता है? हॉक्स जीन्स या फिर अबर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बडिंग रीजन, BMPs, नोडल और WNT। सो बेसिकली अगर बात करें हम हाइड्रा की, तो हाइड्रा में वी कैन सी दी रीजनरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट द बेसिक्स ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी इस क्वेश्चन में पूछा गया है रीजनरेशन ऑफ हेड इन हाइड्रा के बारे में पूछा गया है। तो आपको अगर हाइड्रा क्या है ये नहीं पता होगा तो आपको तो रीजनरेशन वाला कॉन्सेप्ट भी अच्छे से पता नहीं होगा। सो बेसिकली हाइड्रा जो है वो क्या है? हाइड्रा इज़ अ जीनस ऑफ फ्रेश वाटर सिनिडेरियंस। बेसिकली ये सिलेंट्रेटा का मेंबर है एंड जो हाइड्रा होता है वो फ्रेश वाटर में देखने को मिलता है। अब जो हाइड्रा होता है उसका जो बॉडी होता है वो कैसे डिवाइडेड होता है? हाइड्रा का जो यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने दिखाया है, इट इज़ अ ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर, यानी इसका बॉडी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में है, विद अ हेड एट इट्स डिस्टल एंड एंड अ फुट एट इट्स प्रॉक्सिमल एंड। यानी एक फुट और एक हेड में ये डिवाइडेड है। हाइड्रा जो होता है, हाइड्रा का हेड, उसमें एक कॉनिकल हाइपोस्टोम होता है, यानी दिस इज द हाइपोस्टोम। और इसी हाइपोस्टोम में क्या होता है? इट कंटेन्स द माउथ, जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं? सराउंडेड किससे होता है? ये टेंटिकल से सराउंडेड होता है। लाइक यहाँ पे आपको टेंटिकल्स दिख रहे हैं, ये एंड ये वाला, एंड दिस पोर्शन इज नोन एज हाइपोस्टोम, बेसिकली कंसिस्टिंग ऑफ द माउथ। और बेसिकली ये जो टेंटिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं? टेंटिकल्स कैच द फूड। नाउ हाइड्रा को जब भी हम लोग कट करें हाफ में, यानी कि यहाँ से अगर हम लोग इसको कट कर दें तो बेसिकली इट विल शो द रीजनरेशन। यानी व्हेन अ हाइड्रा इज कट इन हाफ, द हाफ कंटेनिंग द हेड, यानी ये जो ऊपर वाला पोर्शन है
दैट विल रीजनरेट अ न्यू बेसल डिस्क, एंड जो नीचे वाला पोर्शन है दिस विल अगेन रीजनरेट अ न्यू हेड. मोर ओवर अगर हाइड्रा को हम लोग सेवरल पोर्शंस में कट कर दे तो जो मिडिल पोर्शन है वो रीजनरेट करेगा क्या, हेड वाला भी पार्ट करेगा एंड बेसल डिस्क भी बनाएगा अलग अलग एंड से. सो इन दिस क्वेश्चन इट इज आस्क्ड कि जो मॉलिक्यूलर मार्कर है हेड आइडेंटिटी का जो कि एपिकल टिप पे प्रेजेंट होता है हाइड्रा के, वो कौन सा है. सो बेसिकली इट इज़ दी वेंट, दैट इज़ WNT, यानी जो हाइड्रा का हेड का रीजनरेशन होता है तो जो मॉलिक्यूलर मार्कर है एपिकल टिप पे जो रहता है दैट इज़ WNT. सो ये जो जीन है वो एक्सप्रेस होता है हाइपोस्टोम में. हाइपोस्टोम जस्ट मैंने बताया कि द हेड कंसिस्ट ऑफ अ कॉनिकल हाइपोस्टोम कंसिस्टिंग ऑफ द माउथ विच इज सराउंडेड बाय अ रिंग ऑफ टेंटिकल्स. तो ये जो वेंट है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेड आइडेंटिटी इन अ हाइड्रा फॉर रीजनरेशन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर ऑस्टियोब्लास्ट. ऑस्टियोब्लास्ट किसे कहते हैं. तो नाउ यहाँ पे बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए हैं एंड जो भी स्टेटमेंट आपको दिए होते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, लाइक एक स्टेटमेंट में अगर कुछ कह रहा है और उसके दूसरे स्टेटमेंट में उसी को अपोज कर रहा है तो बोथ सेंटेंसेस आर कॉन्ट्राडिक्टरी एंड चांसेस है कि उनमें से ही कोई एक जो होगा वो आंसर होगा. अगेन आई एम नॉट सेइंग कि हर बार ऐसा होता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जो कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंसेस दिए रहते हैं यानी कि एक को अपोज करता हुआ दूसरा सेंटेंस दिया होता है क्वेश्चन में, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो ही आंसर होता है. Now let's read the option. First option is osteoblasts are the stem cells that give rise to chondrocytes. So this is the wrong option. यानी जो osteoblast है वो राइज नहीं देता है chondrocytes को, तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया. And osteoblasts are not stem cells. Now option B is osteoblasts are the proliferating precursors of the chondrocyte. No, this is also wrong. Osteoblast किसी भी तरह से precursor नहीं होता chondrocytes के लिए. Third option is osteoblasts are maturing chondrocytes capable of secreting the cartilage present in the growth plate. This is also wrong. They are not chondrocyte, early भी नहीं, mature भी नहीं. Osteoblasts are enlarged chondrocyte. Osteoblasts तो chondrocyte होते ही नहीं है, so this is also wrong. E वाला ऑप्शन है osteoblasts are bone forming cell that derive from stem cell. This is अभी मैंने बताया these are derived from the stem cells in the bone marrow. Bone marrow में derive होते हैं stem cell से and therefore have no lineage relationship to chondrocyte. Chondrocyte से इनका कोई लेना देना नहीं है because they are derived in the bone marrow from the stem cells and osteoblasts are the bone forming cell. Therefore the correct option is option E for this question. And जो key difference है chondrocytes में, chondrocytes are the cell which are involved in the maintenance of cartilage and osteocytes are involved in the maintenance of bone tissue. यानी bone tissues को बनाते हैं, bone की cells को बोला जाता है osteocytes and chondrocytes are cells of the cartilage. So this is the basic difference. So this type of questions are easy to attempt. आपको क्या करना है, आपको बस patiently एक एक ऑप्शन को पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग ये पता करना है कि क्या वो ट्रू है या फिर फॉल्स है. So this is all for today. I hope you liked it. If you want me to provide a particular video on a topic or some question related to any topic, you can comment below. And thank you so much for watching.